Hello children, welcome back to my channel Simplified Maths. Hope you all are doing fine. Now, today in this particular lecture, dear children, we are starting a new chapter. I think you remember last time I have finished the chapter 8, that was an application of integrals. Actually, we have done it little bit fast. The reason was that this time in the board exam, according to the reduced syllabus, the topic after 8.2 exercise and onwards is not there in your board exam. Only area under the simple curve is there, so that we have studied in detail, and also we have seen the overall just look or idea of the topic which is not there for this time board exam. We will definitely go for the few more sums in that chapter, but once we finish all the portion of your board exam, and then we will go for it again. Okay, right now दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन. From my point of view, this is quite a simple chapter. Okay, differential equation I am beginning today. Before I take a definition of differential equation, दोस्तों, just I recall that you know the function, how we represent a function. A function, just recall the function, we take y is equal to fx, isn't it? This is what the way we represent usually the function. And there is another way to represent this function. Okay, the function y is equal to fx can also be, okay, can be or can also be written as, it can be also written as, say this is the another way which we have never used, आज तक कभी ये use नहीं किया है. This one, f of xy is equal to 0. Okay, right? f xy is equal to 0 और y is equal to fx. ठीक है, बट ये हमने कभी भी यूज़ किया हुआ नहीं है. बट आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन बिकॉज समटाइम्स in the college level or a higher level, sometimes they use this type of notation, so and we get confused कि भाई ये कहाँ से आया, ये तो हमको पता ही नहीं है. That is why. Okay, now one more thing, just recall कि here when you write y is equal to fx, then do you know children, आपको एक बात पता है कि इसमें से कोई भी एक वेरिएबल, देयर आर टू वेरिएबल्स x and y. X is one variable, y is second variable. Now, one of the variable is an independent variable and the another is dependent variable. How do I know that x is an independent variable? ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? I am writing that x is an independent, okay, variable. ये कैसे मैं लिख रहा हूँ? The reason is x जो है वो आप मन चाहे जो भी रखना हो you can put. Right? Suppose I take f of 1, f of 2, f of 3 like that. But m means x is independent. आप जो चाहे रख सकते हो. But once you select x, sorry, the value of y depends on x. Value of y means another variable is y, which value depends on x. Isn't it? Okay. Because it is y is equal to fx. So suppose I take 1, then y is equal to f of 1. Suppose I take 2, then y is equal to f of 2. So y is definitely dependent on x. So, and variable y is called dependent variable. इसको हम क्या बोलेंगे? Dependent variable. ठीक है? So this is the just previous knowledge I am sharing regarding function. Okay, now using this thing we will take a, just say a definition or definition of differential equation. Now this title is the differential equation. So वो क्या है, उसकी definition क्या है, that we will go for it now. Okay, so definition or as symbolically what it can be. So मैं लिख रहा हूँ differential equation.
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखना कि उसकी डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन? नाउ सी, all of you know y1, y2, y3 notation, derivative. y1 means first derivative, y2 means second derivative, y3 means third derivative. And do you know children, आप कहाँ तक derivative ढूंढ सकते हो? In our syllabus we used to go for only second derivative, first derivative, second derivative. But in fact we can go up to nth derivative. We can go up to how much? Nth derivative we can obtain. y1, y2, y3 अप टू yn. तो आप लोग वो कॉलेज में पढ़ोगे. कॉलेज में आप जाओगे, अगर इंजीनियरिंग में भी जाओगे या बीएससी में भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको nth डेरिवेटिव ढूंढने का आएगा. ठीक है, राइट? एंड दैट विल बी, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ इट विच इज इन्वेंटेड बाय वन मैथमेटिशियन कॉल्ड लाइबनिट्ज. तो पूरा लाइबनिट्ज का फॉर्मूला है, उसको आपको यूज़ करना है. यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ डेरिवेटिव. ऐसा है. ठीक है, ठीक, राइट? अभी उसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लाइक दिस, दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, independent variable, I am writing in short, independent variable x, ठीक है, and dependent variable y, dependent variable y, and their derivatives, and their derivatives means y1, y2, y3, okay, and their derivatives, okay. So I just take it symbolically, y1, y2, y3 and so on, say yn. ठीक है, right? So suppose these all are there, and then what is the differential equation? Differential equation is a relation, okay, a relation between, means a association or a relation between x, y and their derivatives, okay, is called a differential equation. Suppose that these are given, यहाँ पे मैं आगे एक सेंटेंस वर्ड लिख देता हूँ, let these are given, then, okay, then अभी मैंने यहाँ पे जब ऊपर लिखा, जब ध्यान से देखना, f of x y is equal to 0 means what? It is there are two variables, independent variable x, dependent variable y, and this is you can say that there is some relation. Function is a relation. Hope you remember it. So relation between x and y is there. So what type of relation is? It is y is equal to fx. Okay, right? So यहाँ पे हम relation लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? We will write it like this. Then f of x y means relation between x y, then y1, y2, y3 and so on up to yn is equal to 0. Okay, right? This is a something relation between x, y, y1, y2, y3. All these are given and if you write some equation, okay, equation which is relating all these things, then इसको मैं लिखूँ, then the equation, okay, ये है एक equation मैंने लिखा हुआ है, is called a differential equation. शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, differential equation. होप यू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन शॉर्ट में. ठीक है, राइट? अच्छा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमको क्या लेना है? एक इक्वेशन ऐसा लिखना होगा जिसमें x भी आ जाए, y भी आ जाए और उसके डेरिवेटिव्स भी आ जाए. ठीक है, सपोज कि भाई मैंने लिखा कि भाई x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ओके, प्लस वाई क्यूब dy by dx whole raised to 3
इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है आड़ा टेढ़ा, ठीक है, राइट। डी स्क्वायर सी, इसमें क्या क्या आ गया, एक्स इज देयर, वाई इज देयर, y1 is there, y2 is there. So this type of relation or a equation given is called a differential equations. Okay, right? So hope you understand this. ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने तरीके से as you wish. सपोज कि भाई एक्स स्क्वायर वाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू 2, ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3 इज इक्वल टू 0 एट सो ऑन एटसेट्रा। मीन्स ऐसे आप कोई भी इक्वेशन अपने आप खुद तरीके से यू कैन राइट इट। व्हाट इज द कंडीशन देयर, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, y1 y2 y3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Now the first point comes in this, okay, that is the first exercise, but before I go for the first exercise, there is a definition given of order and degree of the differential equation. Okay, बहुत ही important है MCQ के लिए, order and degree, order and degree of the differential equation. Okay, differential equation, ठीक है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड यू विल बी मच मोर क्लियर एंड इट इज़ सो सिंपल। ओके, और आपको एग्जाम में ऐसे यूजुअली एमसीक्यू में आते ही है, सो ध्यान में रखना। ओके, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखना और पढ़ना जो मैं लिख रहा हूँ है, इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, द फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर। सो ऑर्डर किसको बोलेंगे, द हायर ऑर्डर, द हायर और हाईएस्ट ऑर्डर, highest order derivative, highest order derivative, okay, highest, ध्यान में देखना। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन यू आर डिफाइनिंग ऑर्डर, वी आर यूजिंग द वर्ड ऑर्डर इन द डेफिनेशन। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाए कि यहाँ पे ऑर्डर वर्ड क्यों यूज़ किया है। In any given differential equation, the highest order derivative, okay, of the equation, or means already equation is written, highest order derivative is called its order. Okay, and ध्यान से देखना, and now what is a डिग्री। तो डिग्री के लिए एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखना, वॉट एवर द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका जो पावर होता है, एंड द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called its degree. Okay, confused? If not, then will be very fine, but once I am giving the example, everything will be clear. अगर कोई भी confusion है कि भाई यहाँ पे सर ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, right? What is the definition for degree? Power of the highest order derivative. क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट बिफोर आई गो फॉर द एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देनी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट।
नोट ये है कि फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एनी differential equation, order always exists. Okay, its order always exists. ठीक है, मतलब ऑर्डर के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना है, ऑर्डर एग्जिस्ट होता ही है, बट डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट और मे और मे नॉट डिफाइन. एग्जिस्ट मतलब क्या, डिफाइन. ठीक है, बट ओके, बट इट्स डिग्री may or may not be okay define और exist. ओके, मतलब डिग्री जो है वो अनडिफाइंड भी हो सकती है, ऑर्डर ऑलवेज मिलता है, डिग्री जो है वो मिले भी सही नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, राइट. सो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यू जस्ट रिमेंबर दिस नोट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड देयर इन योर MCQs, बोर्ड एग्जाम में आते ही है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज कि भाई मैंने यू लिया है, ध्यान से देखना, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर होल रेज टू क्यूब, एक्स साथ में लिया, सपोज देन इट इज वाई क्यूब and d cube y upon dx cube whole raised to 4 is equal to 0. ऐसा मैंने कोई एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो हियर ऑर्डर और डिग्री देखे तो ऑर्डर, तो सी ऑर्डर के लिए क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है. So this is second derivative, this is third derivative. So highest कौन सा है, थर्ड है. This is no y3. So order is 3. ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया. एंड डिग्री, डिग्री के लिए क्या डेफिनेशन है हमारी दोस्तों, हाँ, डिग्री के लिए यूँ लिखा है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. पावर मतलब कि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके पावर में क्या है, उसके रेज टू क्या है, 4 है ना, है ना. ओके, सो डिग्री इज 4. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, क्लियर. ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ना यहाँ पे पावर 5 दे देंगे और यहाँ पे 4 होगा, फिर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 5 है, हाईएस्ट है तो 5 डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, तो इसको देखना ही नहीं है बिकॉज ये हाईएस्ट वाला ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसको ही ऑर्डर में और डिग्री में दोनों को इसी को देखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है. ठीक है, राइट. और अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखी कि मे और मे नॉट बी डिफाइंड, क्या, ऑर्डर मे और सॉरी डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड. तो ऐसा मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ जिसमें वो डिफाइन नहीं हो, तो वो इस टाइप का हो सकता है. सो ध्यान से देखना, इट मे बी लाइक दिस, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, हाँ, इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो हियर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, दैट हियर ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव दोनों में से कौन सा ये है, तो ऑर्डर हो गया 2. एंड डिग्री, ठीक है, डिग्री. सो डिग्री जो है यहाँ पे अनडिफाइंड लिखना होगा. ऐसा क्यों, ठीक है, डिग्री अनडिफाइंड क्यों, बिकॉज हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो हमको ये जो ऑर्डर लिया है तो ऑर्डर का जो भी पावर है, पावर ऑफ दिस, वो हमको डिग्री में लिखना पड़े ना. ठीक है, तो मैंने क्यों अनडिफाइंड लिखा, बिकॉज ये जो सेकंड टर्म है, दूसरी वाली टर्म, नाउ दिस टर्म, ध्यान से सुनना, दिस टर्म इज नॉट अ पोलिनोमियल,
ये log ऑफ ये है ना, दिस इज समथिंग, सपोज कि भाई मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई कुछ भी लिख दिया, सो दिस इज अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल एक्स वाई वाई टू, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल टर्म, ठीक है, राइट। सो ये इस टाइप का कुछ भी आ जाए ना, log ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे अगर मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, टेन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, e raised to dy by dx, anything I write, then also you have to say that the degree is undefined, ठीक है दोस्तों, राइट। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना हमारी, जो पहली एक्सरसाइज, तो पहली एक्सरसाइज में एक्चुअली वही दिया हुआ है, ओनली दिस मच इज देयर, उसमें कुछ 9.1 में और कुछ है ही नहीं, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दैट एक्सरसाइज कैन बी डन ओरली ऑल्सो, ठीक है। तो मैं अभी एक्चुअली पूरा नहीं, मैं खाली डिस्कशन में एक दो सम आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक्सरसाइज 9.1, पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ पूछा हुआ है, देर आर 10 सम्स एंड 2 MCQs एंड जस्ट से फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। सपोज उसका फर्स्ट सम देखो, द फर्स्ट सम इज लाइक दिस, d raised to 4y upon dx4, d raised to 4y upon dx4 प्लस साइन ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश, ठीक है ना। सो नाउ ट्रिपल डैश मीन इज द थर्ड डेरिवेटिव, नाउ दिस इज द फोर्थ डेरिवेटिव, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये हाईएस्ट हो गया। सो देयरफॉर ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर विल बी 4 एंड व्हाट अबाउट डिग्री, बोलो। तो डिग्री इसमें, बिकॉज ये साइन ऑफ ये है ना, अभी अभी मैंने बोला साइन ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव, टेन ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव, इवन इनवर्स भी होता ना, यहाँ पे अगर इनवर्स होता तो भी क्या लिखेंगे हम, अनडिफाइंड, ओके। क्या आंसर होगा हमारा, अनडिफाइंड, गॉट दिस, ओके। सो ऐसे ऑल सम्स आर वेरी इजी, एक्चुअली कुछ है नहीं, अब कोई भी सम ले लो एंड देन यू जस्ट हैव टू सी, सपोज कि भाई मैंने इसमें से सिक्स्थ सम लिया, देखो सम नंबर 6 को देखो ध्यान से, तो 6 सम में ऐसा दिया हुआ है, y ट्रिपल डैश the whole raised to 2 and plus y double dash raised to 3, okay, and plus y dash raised to 4 is equal plus y raised to 5, y raised to 5 is equal to 0, ये सम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा दोस्तों, कि इसमें से सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो ये थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3, और वॉट एवर द हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसका जो पावर रहता है, पावर ऑफ दैट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी इस टाइप का सम नहीं है, टर्म साइन ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मतलब कि इसमें you can find out the degree as well, so डिग्री क्या होगी, 2, डिग्री कितनी मिलेगी, 2, ठीक है ना, राइट। सो होप यू कैन फाइंड एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी सम हो, आप उसकी ऑर्डर डिग्री एग्जिस्ट होती है नहीं एग्जिस्ट होती है वो भी आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक मैं एक्स्ट्रा सम भी आपको बताऊं कि कभी कभी कोई ऐसा टाइप का सम भी आ सकता है, टेक्स्ट बुक में भले नहीं दिया है बट हमारी ओल्ड बुक में इस टाइप के सम्स है, कि भाई सपोज यहाँ पर u है y dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इस टाइप का सम दिया हुआ है, एंड प्लस x इज इक्वल टू 0। तो अब इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले ऐसे जो फ्रैक्शनल में डेरिवेटिव दिया है तो दैट इज़ नॉट अलाउड, सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम।
So what will be LCM? dy by dx is the LCM. हाँ, ध्यान से देखना, this is the LCM. So it will be y dy by dx the whole square plus 1 plus x dy by dx, okay, is equal to 0 because that LCM will go with 0. Now you can find out order and degree. तो अब देखो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 1 बिकॉज dy बाई डी एक्स इज द हाइएस्ट वन और उसका पावर है 2 तो डिग्री हो गई 2. ठीक है, डिग्री कितनी हो गई 2. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दोस्तों. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट भी और मुझे देनी है आपको, ये भी आप ध्यान में रखना कि ऑर्डर एंड डिग्री always supposed to be a natural number, okay, means positive integer, okay. Order and degree okay of any differential equation, ठीक है, is or say are always positive integers or a natural number, okay, always a natural number. ठीक है, ये मैं नोट में क्यों दे रहा हूँ आपको, आप एक्सरसाइज में देखोगे तो ये मेरी नोट जो है वो यूजफुल नहीं लगेगी बिकॉज ऑल आंसर्स आर कमिंग इन नेचुरल नंबर्स ओनली. बट if you go for our semester book old one or if you go for any extra sums, there will be many differential equations will be given there in which the powers are given fractional, 1 by 2, 1 by 3 means square root, cube root, fourth root, sixth root भी देते हैं, sixth root तक का इक्वेशन आता है. ओके, तो what to do in such a cases if there is any equation coming appearing in which the powers okay are not integers, तो सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करके, जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया ना, ऐसे अगर स्क्वायर रूट है तो पूरा स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो, फोर्थ रूट है तो फोर्थ पावर लेके फोर्थ रूट निकाल दो, कुछ भी करो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to convert the given equation in such a way that all the powers should be positive integers like this, और बाद में ही आप ऑर्डर और डिग्री ऑब्टेन मतलब कि आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. ठीक है दोस्तों, सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एंड नाउ रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1 फिनिश इन द होमवर्क. ओके, होमवर्क में आप देख लेना, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. ठीक है, रिमेनिंग सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 यू कैन डू. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों वी विल गो फॉर द जनरल एंड particular solution of a differential equation, and means the main topic now starts. We have today all in the introduction of this lecture, definition and all that. ठीक है दोस्तों, thank you very much, have a nice day, bye bye.